the same place as NCC cadets, we have from various directorates who are sitting here. At the end of your camp, everybody writes about your own colleagues. So someone had written in my slam book. So if you have a true potential, you have to unleash. That is up to you. So that's where I said I have to look inward to read myself. So everyone has a potential and we need to realize it and believe in it. And there are endless opportunities and hence create your own stories. NCC, the National Cadet Corps, represents the epitome of discipline, the dedication and service to the nation. Where I had embarked on the path of leadership, knowledge, integrity, and the important thing is the teamwork. To various opportunities it provides you. This is one of the opportunity you have come and represented your directorate. Certain, I would emphasize on certain very key attributes from here as you grow up. Is the discipline. A disciplined individual is never a slave to anyone, but to not to himself also. And it is the backbone of success. And discipline you cultivate here will save you not only serve you not only in the armed forces, but in every aspect of your life. It's key to unleashing your potential. With my course, with the NCC cadets, 2 to 3 cadets have become officers. It's not that rest of others are also doing extremely well. The only key aspect is the discipline. The second aspect is the leadership. It's not about what position, what rank is. We have ranks in the NCC also. They stand and give a command. It's not about the rank. It's about the influence and the impact which you can bring about. Even in the file, if you are standing, if you can provide an impact, that is what the leadership is. Third is the teamwork. Teamwork makes the dream work. So, the past few days, you must be preparing for the competitions of your respective directorate. And it's not a one single man. Only the leader cannot work. The entire team needs to work and produce what is necessary. And always strive to be a reliable and trustworthy team member. As I spoke about leadership, a true leader is also a very reliable team member. Please remember that. And the important thing, having your leadership, the discipline, the last important thing is the resilience. Resilience is very, very important, and it is a trait which you will come to cherish. In the face of challenges or any adversity which you will encounter in your future, this is the only attribute which will define your own character, how well you can cope up with the challenges of the future. Having this excellent platform, start building your character now by step, and be prepared for the challenges and even failures. So, be flexible. To be flexible, you need to empower yourself. To empowering yourself, you need to educate yourself. The education which will provide the foundation and understanding of various subjects, and it ultimately empowers you. What you do when you will be pursuing your higher studies, you will be pursuing certain activities. One thing which is very, very important is have the inquisitiveness, shred your shyness. 22 years before, when I am sitting there, the perspective was entirely different. Today I stand here, the perspective is entirely different. So have the quality of the inquisitiveness. Question it, whatever you want to do. It will greatly help you. This has been these certain qualities which I stand here, may not be proudly saying I must have followed each and everything, but yes,
These things have helped me where I am today. Finally, as an NCC cadet, you are not just an individual, you are a representative of this proud tradition of service. Now, you stand at the threshold of your future. Remember, the journey is not limited to acquiring knowledge, sitting here, drills, and other qualifications. It is about, most important thing is embracing the curiosity, creativity, innovation, and unleashing your true potential, which each and every one of you have got it, which you would have realized it in various activities. Because that's where your leaders must have delegated you certain activities. Therefore, you have got your own potential. So let the passion guide you, dreams be your wings, and determination be your fuel. With an unwavering belief in yourself, go for it and create your own stories. Subsequently, maybe a few years down the line, I may be sitting here and listening to your stories. Jai Hind. अब मैं सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र से कैडेट को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। सबको जय हिंद। मैं जोश नहीं एनसीसी वाला। जय हिंद। जय हिंद। सोए हो जाग के? यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, एनसीसी के स्टाफ, आज मुझे भी काफ़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज आप सबके सामने यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। मैं 2 साल पहले आया था जब एनसीसी का पिछला उसमें, तो 2 साल के बाद दोबारा आप लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं खुद एक एनसीसी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था उस टाइम। मेरा जो आर्मी का सफर है या आर्मी में जाने का इरादा जो था वो यहीं से ही एक एनसीसी कैडेट बनने से ही शुरू हुआ था। आप लोग सब अपने आप को एक जगह रख के देखना, जब आप क्लास में थे 40 या 50 स्टूडेंट थे, उसमें से 2 या 4 या 10 उसमें से छांट के आप एनसीसी में आए। आज से छंट के यहां तक पहुंचे, तो कितने लोग पहुंचे? कितने लोगों में से छंट के आए आप लोग? हजारों में से, लाखों में से? तो आप लोगों में कुछ अलग है, बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए? तो अपने आप को आप एक बाकी लोगों से अलग समझ सकते हैं। आप में वो काबिलियत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप हजारों में से छंट के यहां तक पहुंचे हैं, तो बोलते हैं ना कि यहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं बहुत कठिनाई वाली है, और इन सीढ़ियों के बाद भी जब आप आर्मी में ज्वाइन करोगे तो भी हो सकता है इसमें से और छंटनी होगा, तब जाके जो मजबूत इरादे वाला जो सैनिक बनेगा। कोई शक नहीं है कि आप लोगों में वो काबिलियत नहीं है, सब में है, सब कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कुछ करने की चाहत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के जमाने में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। बस इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। एनसीसी के अंदर जो कुछ आपने आज तक सीखा है, क्या आपको पहले पता था कि आप यहां जाके ऐसा सीखोगे या ये कर पाओगे? क्या ड्रिल आप लोगों ने पहले किया था?
वेपन चलाना क्या पहले सीखा था? लेकिन सीखा। तो जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको आगे बढ़ने के लिए, हर क्लास में आगे पास होने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए आपको मेहनत करवाते हैं, वैसे ही हमारा जो स्टाफ है वो आपको या आगे से आगे बढ़ने के लिए हर वो तरीके की ट्रेनिंग आपको देते हैं कि आप उन मुश्किलों का सामना कर सकें। तो ये चीजें ऐसी कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जब उससे पहले आप एनसीसी में या फौज को जब देखते होंगे टीवी पर या उसमें किसी सीरियल में, तो आप लोग देखते होंगे कि ये पता नहीं कैसे कर जाते, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो आप भी वैसा ही सब कुछ कर सकते हैं। वो आपने अपने अंदर अभी देख लिया होगा यहां तक पहुंचने के लिए। मेरा सफर, जब मैंने आपको कहा था कि मैं भी एनसीसी से था, तो मैंने भी जब आर्मी को ही क्यों सिलेक्ट किया, वो बस यही एक कारण था कि जब मैंने यही ड्रेस पहनने के बाद जब मैं अपने आप को पाता था कि बाकी अपने क्लास के जो साथी हैं उनसे मैं कुछ अलग हूं। 40 के 40 तो एनसीसी में नहीं आए, लेकिन हम 5-6 लड़के थे जो एनसीसी में अपनी क्लास से गए थे। तो जब ये ड्रेस पहनने के बाद एहसास होता था कि मैं कुछ बाकियों से अलग हूं। जब आप ये सिविल ड्रेस जब डालते हैं या घर में जब जाते हैं, तो आपके जो एक जिम्मेवारी, एक ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए, वो नहीं रहती। लेकिन इस ड्रेस को पहनने के बाद आपको हर वो चीज याद आती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। होता है ऐसा कि नहीं? सिविल ड्रेस में तो आप कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी चलेंगे, लेकिन इस ड्रेस को पहनने के बाद आपका चाल ढाल, बोलना, हर चीज बदल जाता है। यही तो है जो आपको यहां सिखाया जाता है। बस आगे जाके, जैसे मैंने कहा, फौज में जब आप अगला जब कदम उठाओगे, जब फौज में भर्ती होंगे, तो अगला कदम वहां का जो आपके जो टीचर्स रहेंगे वो आपको सिखा देंगे। मैं आज 11 साल से एकेडमी में हूं, पहले आईएमए में था और अभी एनडीए में हूं। तो तकरीबन 8 से 8.5 हजार के करीब कैडेट्स ऑफिसर बन के यहाँ से गए हैं। तो मैंने उनके अंदर यही चीज देखी है कि जो शुरू से ही एक अपना एम लेके चलते हैं, जिन्होंने अपना एम एक बना के रखा है, वो उस एम तक पहुंचे हैं। जो उन्होंने उस चीज को पाने की चाहत रखी है, वो चीज उन्होंने पाई है। 2 नाव का जो भी बैठता है वो पार नहीं लगेगा, सिर्फ एक नाव पे रहेगा। फौज के हर स्टेप आपने तकरीबन आधे तो यहां सीख लिए हैं, आगे जाके सीखेंगे जाके, और कभी मौका लगेगा सीआई ऑफिस में जाने का या वॉर में कभी जाने का, तो आप देखना। डर तब तक है जब तक आमने और सामने की गोली नहीं चली। डर तब तक है जब तक दुश्मन के साथ आपका सामना नहीं हुआ, उसके बाद कोई डर नहीं, क्योंकि उसके बाद आपकी जो सोचने की शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक चीज आपको दिखाई देगी, वो आपका एम, कि आपने सिर्फ उसको बर्बाद कैसे करना है। क्योंकि जब तक वो आगे बैठा है तब तक आप सेफ नहीं हो। बाकी हर चीज आप भूल जाओगे, हर कुछ भूल जाओगे, घर परिवार से लेकर जिन्होंने पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया है, वो सब चीजें आप भूल जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, जैसे वो अर्जुन को बोला था ना कि क्या दिखाई देता, वो आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही आपको भी वो एम दिखाई देगा जो आपके आगे होगा, या वो मुश्किलात आपको दिखाई देगी जो आपके आगे, आपकी रुकावटें जो बन रही है। तो मैं कोई अलग नहीं था, मैं भी अपनी टीम में एक छोटा सा सिपाही था, फौज का एबीसी तक नहीं जानता था, 3-3.5 साल की नौकरी थी। लेकिन मौका मिला, और उस मौके में जो मेरे सीनियर थे, मेरे कमांडर थे, उन्होंने जैसे जैसे हिदायतें दी, जैसे जैसे वो बताते गए, जैसे रास्ता हमें दिखाते गए, वैसे हम चलते गए।
और वो रास्ता यहाँ तक पहुंचेगा हमें भी आइडिया नहीं था, या उस रास्ते पे जो उस कदमों पे हम दोबारा वापस आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे वो भी पता नहीं था। लेकिन जिसको बोलते हैं ना भरोसा, जब अपना आप टीम लीडर जो आपका है उस पर अगर आपका भरोसा है तो सब कुछ मुमकिन है। जो टीम वर्क है वो टीम वर्क दर्शाता है कि आपका टीम कैसे काम करेगी। वो आपकी परफॉर्मेंस आप दर्शाएगी कि ये टीम क्या कर सकती है। टीम के हर सदस्य का काम उतना ही होता है जितना किसी एक का। मैं कहूं कि मुझे अवार्ड मिला तो सब कुछ मैंने ही किया था, ऐसा नहीं था। जो मेरी टीम के लोग थे उन सब का उतना ही मेरे से ज्यादा योगदान रहा होगा। जो मेरे साथी थे, मेरे बड़ी थे, मेरे से ज्यादा योगदान उनका रहा था। क्योंकि लड़ाई एक ऐसी चीज है, उसके बीच में जाने के बाद आपको एग्जिट रूट खुद बनाना है, वापस आने का रास्ता नहीं है। एक बार चल गए, आगे निकल गए तो निकल गए। वो तभी हो सकता है जब आप एक टीम होके लड़ेंगे, और टीम के हर सदस्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके बीच में क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकता है। जैसे आप लोग जब बैठे हैं तो कई लोग कंप्यूटर के माहिर हैं, कुछ वेपन में अच्छे होंगे, कुछ ड्रिल में अच्छे होंगे, कुछ भाषण देने में अच्छे होंगे, कुछ संगीत में अच्छे होंगे, कुछ डांस करने में अच्छे होंगे। हर किसी में सारे गुण नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो टीम है उसके बीच में आपको सारे गुण मिल जाएंगे। और टीम जब एक बन जाती है तो किसी भी मुद्दे को हासिल कर सकती है, और वो हमने भी वैसा ही किया था। इंटरनेट का जमाना है, आप लोगों ने सबने मेरी स्टोरी जो सब कुछ पढ़ा होगा कि क्या है। बस मैं इतना कहूंगा कि जो पल, जो अंतिम पल जिसको बोलते हैं, कुछ समय जो आमने सामने का जो गुत्थम गुत्था लड़ाई का रहता है, उसके बीच में आपके जो योगदान है उससे ज्यादा आपके साथियों का योगदान आपके साथ रहता है। क्योंकि उसका हौसला और उनका सहयोग आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। अगर आपका साथी कहीं इंजर्ड हो जाता है या आपको कभी गोली लग जाती है तो आपका साथी आपको उठाने के लिए कैसे आता है, क्यों आता है? उसको पता है कि वहां अगर मेरे साथी को गोली लग सकती है, मैं उसको वहां से हटाने के लिए जाऊंगा तो मुझे भी गोली लगेगी, लेकिन फिर भी जाता है। वो इसलिए ही जाता है क्योंकि उसको पता है कि जो टीम हमारी है वो एक परिवार है। अपने परिवार की तरह जो सदस्य हैं उसकी तरह जब वो दूसरे को मानने लगता है तब वो अपनी परवाह ना करके दूसरे की परवाह करता है। यही टीम वर्क है। जब आप अपनी सुरक्षा से ज्यादा दूसरे की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं वही टीम वर्क है, और वही हमने किया था। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप लोग जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता मुश्किल नहीं है कि आप उस रास्ते पे नहीं चल सकते। यहां तक पहुंचने के लिए मुश्किलातें थी, लेकिन आगे जाने के लिए अभी मुश्किल नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अपने जो कदम हैं उनको पीछे मत लेना और आगे बढ़ते रहना है। जो मुश्किलात आपने सह ली है इससे कम ही आगे होगा, और आप एक अच्छे नागरिक और अच्छे सैनिक बन के दिखाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सबका कि आज आप सबके सामने मुझे बोलने का मौका मिला। टाइम कम है, कहानियां तो कारगिल की वॉर का तो अगर मैं शुरू करूं तो शाम तक कर सकता हूं, क्योंकि हर दिन हर पल की एक अलग से स्टोरी है। क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो पल जिए हैं। वो इतने कम टाइम में तो अब सारी चीजें बयान करना काफी मुश्किल है, लेकिन आज भी जैसे मैंने कहा पहले कहा कि इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ आपको नेट पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें ये सब कुछ बातें जो मैंने पूरी नहीं की या नहीं कर पाया वो आपको वहां से मिलेंगी। और आपने, मेरे को पता है कि उससे पहले भी आप लोग उन चीजों को स्टडी करते आए हैं।
क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितना फायदा इसका है उतना इसका नुकसान भी है, तो इसको उतना ही इस्तेमाल करना जो आपके फायदे के लिए, आपके अच्छे आने वाले भविष्य में काम आने वाली चीज़ें, उसका इससे फायदा लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन जोश एनसीसी वाला नहीं है। मैंने फिर पहले भी कहा था, आधे फिर सो गए या तो। भारत माता की जय। अब आया, यानी जगाना पड़ता है।